Good morning, everyone. So, our today's chapter and our today's topic is Section 2, Unit 2, Section 1, Chapter 1, Vidamundam and Kodamundam. This is a chapter that we are going to read today and try and understand today. Alright, I'll go with the line by line explanation of this chapter. What you have to do is you have to go through your books as well, side by side, and in case if you have any queries, you can just ask me out about the topic or a particular word or phrase or sentence that you are not able to understand. Alright, so let us start off with this particular chapter now. Chapter goes like, in the town of Tiruvalla, there lived a clever Brahmin called Kodamundam. तिरुवला नाम का एक विलेज था जहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम क्या था, कोडामुंडन. It was his daily routine to visit different homes and persuade people to give him raw rice, pulses, spices and oil. तो उसकी डेली की प्रैक्टिस थी कि वो डेली अलग अलग जगहों पर जाता था और वहाँ से जाकर अलग अलग तरीके के रॉ राइस ले लेता था, चावल, दाल, अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को कलेक्ट करता था. persuade करने का मतलब होता है convince करना. Alright. The excuse he gave was that we use these ingredients to feed the poor. Everyone believed this and generously gave whatever he was asked for. But Kodamundan never fed anyone apart from himself and his wife. Keeping aside a portion for their daily needs, he would sell the rest at a good profit. और उसका काम क्या था? वो जो भी फूड लेता था, वो बताता था कि मुझे ये सारा फूड चाहिए क्योंकि मैं गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ. बट वो करता क्या था, वो जो फूड लेकर जाता था उससे वो खुद खाता था और अपनी वाइफ को खिलाता था, और जो उसका रॉ मटेरियल, जो रॉ फूड बच जाता था उसको वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बेच देता था. इन द नेबरिंग विलेज देयर लिव्ड अनदर ब्राह्मण हुज नेम वाज विडामुंडन. और उसी के पास वाले विलेज में एक और ब्राह्मण रहता था जिसका नाम क्या था, विडामुंडन. ही वाज जस्ट एज क्लेवर एज हर फ्रेंड कोडामुंडन. वो भी उतना ही क्लेवर था जैसा कि जितना क्लेवर कोडामुंडन था. Vidamundan had heard of Kodamundan and his greedy nature. He decided to get a meal out of him, no matter how long it took or how hard a task it was. जो दूसरा ब्राह्मण था विडामुंडन, उसने डिसाइड किया कि चलो आज हम लोग जो फूड है वो कहाँ से लेकर के आएंगे, कोडामुंडन से फूड लेकर के आएंगे, भले ही कितना समय लगे, भले ही कितना भी टाइम लगे. One fine morning he landed up on Kodamundan's doorstep and politely asked if he could be given a meal. एक सुबह की बात है जब विडामुंडन, जो कि दूसरा ब्राह्मण था नेबरिंग विलेज का, वो कोडामुंडन के घर पे गया और पोलाइटली उन्होंने पूछा क्या उसे कुछ खाने को मिल सकता है. I am really very sorry, Kodamundan said, looking very regretful indeed, but I have already invited 10 guests for lunch. There is nothing to spare today. If you come tomorrow, it will be my pleasure to give you meal. Alright. और कोडामुंडन रिप्लाई करता है कि आज तो मेरे पास ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, ऑलरेडी मैंने 10 लोगों को खाने में इनवाइट कर रखा है. ठीक है, ऑलरेडी उसने क्या कर रखा है, 10 लोगों को खाने में इनवाइट कर रखा है. On his assurance, Vidamundan returned the next day at the same time. You asked me to come. He said presently here am I am. अगले दिन अगली सुबह वो फिर से जाता है और बोलता है कि आपने मुझे बोला था कि अगली सुबह आइएगा, तो मैं आ गया हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दीजिए. Kodamundan realized that he had to come up with a better excuse. Putting him on regretful face, he said, I am really sorry to disappoint you again. Unfortunately, last evening my wife fell ill. She was still not recovered. As there is no one to cook, I have postponed today's Annadan till she feels better. It might take a few days. I'll let you know when it happens. और कोडामुंडन जब अगले दिन उसको देखता है विडामुंडन को, उसको लगता है कि अरे मुझे कोई एक ज़्यादा बेटर एक्सक्यूज करना पड़ेगा, ऐसे तो ये जा नहीं रहा. ठीक है, तो कहता है कि लास्ट नाइट मेरी जो वाइफ है वो बीमार हो गई है और अभी कोई भी खाना बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है और पोस्टपोन करना पड़ रहा है मुझे आज का अन्नदान. अन्नदान मतलब तो अन्न हम लोग दान करते हैं. वो कहता है कि आज का अन्नदान मुझे पोस्टपोन करना पड़ रहा है और जब भी जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी, जब दोबारा वो खाना बनाने पाएंगी, तब मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बता दूंगा. Alright. Vidamundan was no less. His face took on an expression of the most sincere sympathy. I am very sorry to hear that your wife is unwell.
He said, however, to give up the charitable act of Annadan on such a filmy ground is not quite appropriate. I have developed considerable culinary skills over the last 10 years. I can cook for hundreds of people. Let me offer you my full assistance in my kitchen. Your wife can rest. I will even cook a light dish of pongal for her. अब जैसे ही वो बोलता है कि मेरी वाइफ जो है वो बीमार है, बेटा उन्होंने जो कहता है वो भी बहुत ज़्यादा कोई कम नहीं है. वो कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं 100 लोगों का या उससे ज़्यादा लोगों का भी खाना बना सकता हूँ. तो ऐसा करो आप अपनी वाइफ को आराम करने दीजिए क्योंकि वो सिक हैं, और मैं आपकी किचन में हेल्प करता हूँ और आपको खाना कुक करके देता हूँ. आई कैन इवन कुक अ लाइट डिश ऑफ पोंगल. कोई डिश है पोंगल वो भी बना सकते हैं. Kodamundam was in a fix. How could he break his age-old habit of never feeding anyone? He decided that after getting Kodamundam to do the cooking, he would find an excuse to send him away without feeding him. So he said, "Thank you for your kind offer. Please come in." Kodamundam कभी उसने किसी को खाना नहीं खिलाया था, तो अभी भी वो अपनी आदत से मजबूर था और वो नहीं चाहता था कि वो खाना खिलाए. बट वो पर्सन जो था विडामुंडम, वो उसको खाना भी बनाने के लिए रेडी था. तो उसने कहा कि चलो ठीक है, ये खाना एक बार बना लेगा तो मैं कोई से एक्सक्यूज़ कर दूंगा और मैं इसे भगा दूंगा घर से, मैं इसको खाना नहीं दूंगा, खाना बनवा लेता हूँ. और फिर वो कहता है प्लीज़ कम इन, ठीक है आप आ जाइए और खाना कुक करने में मेरी हेल्प कर दीजिए. As was the custom those days, Vidamundan went to have a bath and change his dhoti before entering the kitchen. While he was thus occupied, Kodamundam sneaked off to tell his wife that she should pretend to be ill. She really agreed. She was only too happy to let someone else do the cooking for a change. और उस समय पे कैसा होता था कि खाना बनाने के पहले या किचन जाने के पहले पीपल यूज्ड टू टेक बाथ. तो जब तक बाथ लेने के लिए चला गया और धोती चेंज करने चला गया, जो दूसरा ब्राह्मण था उसने अपनी वाइफ से कहा कि ठीक है आप ऐसा प्रेजेंट करो कि आप इल हो, ठीक है. और उसकी वाइफ भी एग्री हो गई कि हाँ चलो ठीक है, फौरन चाहिए एक दिन का मुझे आराम मिल जाएगा और कोई दूसरा पर्सन खाना कुक कर देगा हमारे लिए. Kodamundam believed in eating well. With Vidamundan's help, he prepared a lavish meal of 5 to 6 different dishes. As soon as the cooking was over, he said, "I have only one banana leaf in the house. Will you take this copper coin and get a few more leaves from the bazaar?" अब जैसे ही उसने बहुत ज़्यादा खाना 6-7 तरीके की डिश बनवा ली, बहुत सारा खाना बनवा लिया, तो उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही बनाना लीफ है. एक्चुअली होता क्या था उस टाइम पे, लोग बनाना लीफ में खाना खाते थे और साउथ इंडिया में बनाना लीफ में ही खाना खाया जाता है. तो उसने एक सिल्वर कॉइन दिया, उसने एक कॉपर कॉइन दिया और उसको बोला विडामुंडम को कि आप जाओ और जाकर के कुछ बनाना लीफ बाजार से ले आइए. While Vidamundan was out on an errand, Kodamundam said to his wife, "My dear, I have saved your trouble of cooking today. I wish we could get such gullible people every day to do our cooking. He will return in a short while. It will not look nice if we simply refuse to open the door. We must do something that makes him go away of his own accord. I have a plan. As soon as he comes back, you start quarreling loudly with me. I'll pretend to beat you. You must pretend to cry. He would not wish to get involved in a domestic quarrel. Will surely go away." अब कोडामुंडम कहता है कि चलो मेरे पास एक प्लान है, जब वो वापस आएगा तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग कि दरवाज़ा बंद रखने दें और दरवाज़ा ना खोलें क्योंकि वो चीज़ सही नहीं होगी. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, मैं ऐसा करता हूँ कि जब वो लौटेगा तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करने का एक ड्रामा करेंगे और मैं प्रिटेंड करूँगा, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैं आपको मार रहा हूँ और आप मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगना, ठीक है. सो दैट वो डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा और खुद ब खुद वहाँ से चला ही जाएगा, अपने आप चला जाएगा. As soon as they heard Vidamundam's footsteps, husband and wife started squabbling loudly as planned. The wife said, "How can we manage if you feed anyone or everyone who comes here? If you have to invite a guest even when I am unwell?" The husband retorted, "If I wish to practice charity, why do you feel so bad? I am spending my own hard-earned money." और जैसे ही उन्होंने देखा कि विडामुंडन वापस आ रहा है, लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया. उसकी वाइफ ने बोला, "क्या तुम किसी को भी खाने को बुला लेते हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी खाने को बुला रहे हो?" तो कोडामुंडम कहता है, "ठीक है, मैं अपना हार्ड अर्न मनी जो मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है उसको ही तो मैं खर्च कर रहा हूँ. एंड यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट." लाइक ही स्टार्टेड टू बीट द वॉल विद ऑल हिज माइट. At once the wife started howling as if she was being thrashed.
Vitamunden, who was standing outside the front door, heard this racket. Unwillingly to interfere in domestic dispute, he hid in a room adjoining the kitchen where firewood and dried cow dung cakes were stored. और जब उसने देखा कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वो विलिंग बिल्कुल नहीं था कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो वो एक पास वाले कमरे में छुप कर बैठ गया. The beating and howling went on for a long time. As last, Kodamundam stopped and cautiously peeped out. There was no one in sight. और बहुत देर के बाद उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है. He bolted the door carefully and said to his wife, "At last we have succeeded in driving away the obstinate man. All this beating and shouting has made me hungry. I'm sure you must be as famished as I am. Come dear, let us eat." और वो कहता है कोडामुंडम, चलो अच्छा हुआ हम लोगों ने इस ड्रामा करके, ऐसा ड्रामा करके हम लोगों ने विडामुंडम को भगा दिया. The wife spread mats on the floor, placed the banana leaves and glasses, and arranged the dishes. She served her husband and herself. She sat down to eat. Watching them through a crack, Vidamundan waited for the right moment to announce his presence. और वो विडामुंडन जो है वो गेट के दरवाजे से छोटा सा एक जगह थी, वहाँ से वो देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि बिल्कुल सही मौके पे मैं वहाँ पर एंटर करूँगा. Kodamundam, who could not help gloating, said to his wife, "Well, my dear, I beat you without touching you. And I cried without shedding a tear," she replied. और वो लोग आपस में बात करने लगे कि मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, फिर भी मैंने तुम्हें मारा. और वो कह रही थी कि हाँ, आई इवन क्राइड विदाउट शेडिंग अ टीयर, बिना कोई आंसू बहाए मैं जो है रो भी रही थी. फ्रॉम द स्टोर रूम शाइन इन अ थर्ड वॉइस, "I have come back to eat my meal without going away." और उसी बीच में विडामुंडन कहता है, और मैं भी वापस आ गया हूँ अपना खाना खाने. मैं गया नहीं और मैं खाना खाने पे वापस आ गया. And with this, Vidamundan joined them for a hearty meal. You can't deny that he deserved it. और हम लोग बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि वो डिजर्व करता था. और इस तरीके से विडामुंडन ने, जो कि एक नेबरिंग विलेज का ब्राह्मण था, उसने जो ग्रीडी ब्राह्मण था कोडामुंडन, उसके घर पे जाकर खाना खा लिया. ठीक है. So this was all the chapter. I hope this gives you a brief explanation of what the chapter is. आपको क्या करना है, आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स अपनी बुक में फाइंड करने हैं. ये भी तो क्वेश्चन आंसर्स लेटर, बट अभी आपको सिर्फ अपनी बुक में फाइंड करने हैं आंसर. और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपको अपने बुक में फिल करने हैं. आई विल ऑल्सो गिव यू द डिटेल्स एंड आंसर्स टू द सेम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, so you can just comment on this very same video. You can just ask me on the WhatsApp group. I hope you all are safe. Stay home and stay safe. Thank you.